बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए कंपनी का एक ओवरव्यू लेके आए हैं शेल पाकिस्तान लिमिटेड का। शेल पाकिस्तान लिमिटेड चूँकि बहुत इस वक्त डाउन ट्रेंड पे है, बहुत नीचे है, तो इस वक्त हम ये देखेंगे क्या इस पॉइंट पे इसको लिया जा सकता है कि नहीं। कंपनी का ओवरव्यू भी देखेंगे, इसके ग्राफ्स भी देखेंगे, इसके टेक्निकल पे भी नज़र डालेंगे, फाइनेंशियल पर भी गौर करेंगे। हमारे साथ वीडियो में एंड तक रहिएगा ताकि आपको तमाम मालूमात मिल सकें। वीडियो को पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और नए आने वाले अहबाब से गुजारिश है कि साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। सबसे पहले देखते हैं कंपनी का ओवरव्यू। Our world's population continues to rise, set to reach 9 billion people by 2050. 3/4 of us will live in cities, and we will all need energy. To live, to work, to move around. In just 50 years, global energy demand could be 75% higher than today. Meeting that demand will require a radical change in the global energy system and new energy sources. Innovation and technology are vital to achieving these. At Shell, we invest more than $1 billion in research and development every year and lead the way in developing new energy products and technologies, from biofuels and liquefied natural gas to more efficient fuels and lubricants. Scientists at our technology hubs in Houston, Bangalore and Amsterdam, and at our technical centers around the world work across time zones to ensure research never stops. Pearl, the world's largest gas-to-liquids plant, processes around 1.6 billion cubic feet of wellhead gas every day. The plant makes enough synthetic oil each year to produce lubricants for more than 225 million cars. Whilst Prelude, the first ever floating liquefied natural gas project, will open up previously hard-to-reach natural gas fields at sea, it's expected to produce enough liquefied natural gas, liquefied petroleum gas and condensate each year to meet the annual gas demand for a city the size of Hong Kong. In Canada, Shell's Quest project will create the world's first commercial-scale facility at an oil sands operation to capture and store CO2 safely underground. And Raizen, our joint venture in Brazil, is a leading producer of ethanol from sugarcane. This biofuel emits around 70% fewer CO2 emissions than gasoline. We work with governments, world-class academics and industry specialists to help meet the world's growing energy needs. Our collaborations range from developing advanced fuels to improving data processing within the IT industry. We share ideas and expertise with partners inside and beyond the energy sector to drive innovation forward. We know some of the best ideas begin outside our business. Through programs like Shell Game Changer, we find and nurture unproven concepts that could transform the energy industry. And our Shell Livewire and Shell Ideas 360 programs are inspiring the next generation of scientists, engineers and entrepreneurs to turn their innovative ideas into exciting reality. We believe many contributors are necessary to turn old ways into new. That's why we are rallying our partners in a global culture of open innovation, bringing together organizations and individuals to develop tomorrow's energy solutions today. The world's energy system will not transform overnight, but for the 3 billion people without access to modern energy sources, change cannot come soon enough. At Shell, we will continue to push the limits of technology, embrace human ingenuity, and tackle these complex challenges, shaping our energy future through innovation. शेल पाकिस्तान लिमिटेड इस वक्त 201.15 रुपये पे ट्रेड कर रही है। लास्ट वर्किंग डे में इसने 0.26% लूज किया, नीचे आई और इस वक्त इसका मार्केट का कैपिटलाइजेशन 21,525 मिलियन का है। इसका मार्केट के साथ बीटा इस वक्त 1.29 का है और इसके जो सेक्टर की पी है वो 0.165 की है। पिछले 6 महीने से ये कंपनी मुसलसल डाउन ट्रेंड पे है। 12.54% ये 6 महीने के दरमियान में गिरा चुकी है। 3 महीने में 15.50% ये कमी कर चुकी है। 1 महीने में -5.26 ये गिरा चुकी है और एक वीक के दौरान ये -3.80% नीचे आ चुकी है।
जबकि 1 ईयर का गेन इसका 0.66% तक रह गया है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो इस वक्त इसका जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है प्लस 151.7% का है, जो कि पिछले ट्रेंड से उठता हुआ लग रहा है। जो इसकी सेल्स हैं वो भी बढ़ रही हैं। इस वक्त जो इसकी सेल 43.615 पे हैं, जो सेल्स की ग्रोथ है वो प्लस 47.17% है, जो पीछे डाउन ट्रेंड से इसको निकालकर अप ट्रेंड में लाने की कोशिश कर रही है। मौजूदा ईपीएस इसकी 16.93% की है और क्वार्टर 3 2020 में इसकी जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक है। अच्छी ग्रोथ के साथ ये कंपनी चल रही है। जो इसका नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर 2 2020 में कमी का शिकार था, लेकिन वो उस कमी से निकलकर लॉस एलपीएस से निकलकर इस वक्त ये कंपनी ईपीएस शो कर रही है क्वार्टर 3 2020 का। अगर इसके एसेट पे नजर डालें तो इसके एसेट जोन से हैं वो बढ़ रहे हैं। क्वार्टर 2 2020 में जो इसके एसेट थे वो क्वार्टर 3 2020 की निस्बत कम थे और अब इसके एसेट जोन से वो बढ़ रहे हैं। टोटल लाइबिलिटीज इसकी कमी का शिकार है, माइनस की तरफ जा रही हैं। टोटल इक्विटी जोन से वो कमी का शिकार है, माइनस 1.775 की इस वक्त इक्विटी है। एक नज़र हम शेल की परफॉर्मेंस पे डालते हैं। 2014 में इसकी जो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन था वो 3.02 था। 2015 में ये 5.37 पे था, जबकि 2017 में टॉप पे था 8.81 के साथ। लेकिन 2018 में थोड़ा सा कमी का शिकार हुआ, 19 में ये मजीद कम हुआ, लेकिन अब 12 ट्रेलिंग मंथ्स के दरमियान ये 4 पॉइंट पे इस वक्त मौजूद है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये भी इस वक्त का कमी का शिकार है, माइनस में है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड परसेंटेज माइनस 91.32 है, जबकि इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा कमी का शिकार है, माइनस 3.96 पे खड़ा है। नेट प्रॉफिट अगर पीछे नज़र डाली जाए तो 2016 में इसका नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा था, 4.04 का। 17 में इसका 1.88 था। उसके बाद ये मुसलसल कम होके इस दफ़ा इसका जो टीटीएम है वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल पे है, बहुत ज़्यादा तकरीबन अपनी हिस्ट्री के लो के ऊपर इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन खड़ा है। इसकी वजह क्या है उसको हम आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे। अगर इसकी वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन में जो इसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 107.047 पे तकरीबन कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं, अब भी तकरीबन उसके पास पास ही हैं। और सेल पर शेयर इसकी 1572.18 है, जो कि पीछे की निस्बत इस दफ़ा कम है। उससे पीछे थोड़ी सी मज़ीद कम थी। 2019 में इसकी सेल पर शेयर जो सी 1866.31 थी और अब इसकी मज़ीद कमी का शिकार है। मार्केट प्राइस पर शेयर इसकी 245.46 पे है और अर्निंग पर शेयर इसकी माइनस 62.36 है, जो कि नेगेटिव है, बात नेगेटिव जोन में है। शेल की फाइनेंशियल्स पे एक नज़र डालते हैं। जो इसकी सेल्स हैं 2016 में इसकी 167.64 थी सेल, 17 में बढ़ी और 18 में 186 और 19 में इसकी सेल सबसे ज़्यादा थी 199 और अब इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ्स के अंदर 168.243004 हैं। सेल्स इसकी कम हो रही हैं। जो इसकी कॉस्ट ऑफ सेल, अगर सेल कम होती है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी इसकी कम होगी और इसका ग्रॉस प्रॉफिट जोन सा वो भी निचली साइड पे आएगा, नफ़ी का शिकार होगा। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी कम हो रहे हैं, पीछे की निस्बत कम है। क्योंकि इसकी सेल्स कम है तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी कम होंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो बढ़ रहे हैं। ये ख़तरनाक बात है, इसको नहीं बढ़ने चाहिए। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो भी पीछे की निस्बत कमी का शिकार हैं। अदर इनकम इसकी बढ़ रही हैं और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ये कमी का शिकार है कि ऑपरेशन की तरफ से जो इसका प्रॉफिट है वो नेगेटिव जोन में जा रहा है। नेक्स्ट अगर इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट देखें तो इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन जो सा है वो इसका वो भी इस वक्त बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा है। और टैक्सेशन के बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी इसका कमी का शिकार है। दिस मीन ये कंपनी जो सी है ईपीएस के बजाय एलपीएस की तरफ तेज़ी के साथ जा रही है। अब रिजल्ट में देखें क्या शो करती है। अब हम इसके टेक्निकल्स पे देखते हैं और टेक्निकल में इसकी आरएसआई न्यूट्रल है, स्टोकेस्टिक इसकी ओवरसोल्ड है, एमएसीडी में देखा जाए तो ये बीरिश है और सीसीआई में देखा है न्यूट्रल है। एटीआर इसकी 6.25 पे है।
पिवट पॉइंट इसका 201.55 पे है, सपोर्ट 1 इसकी 199 पे, सपोर्ट 2 198 पे, रेजिस्टेंस 1 इसकी 203 पे और रेजिस्टेंस 2 205 के ऊपर है। अब अगर हम इसकी फाइनेंस को देखें तो फाइनेंस में हम लोग क्लियर देखते हैं कि Q3 जो एंडेड था सितंबर 30 2020 में, उस वक्त इसकी सेल जो से वो इंक्रीज हुई थी और इसको प्रॉफिट हुआ था, ये कंपनी प्रॉफिट में थी और जो इसका ईपीएस है वो 16.93 पे था। ईपीएस इसका अच्छा था Q3 में। अब जो सा रिजल्ट आ रहा है आपका वो ईयरली रिजल्ट है। ईयर के रिजल्ट पे अगर ये चीज़ इफेक्ट करती है तो हो सकता है कि ये कंपनी जो सी है कुछ प्रॉफिट शो करने के काबिल हो, लेकिन जो इसका पीछे आप लॉस देखें, पिछले वाले एंडेड में क्वार्टर एंडेड में वो 33 पे था और उससे पीछे 14.49 पे और अब 16। इसकी निस्बत अगर इन सब का आप प्लस करें और इसको इसमें से प्लस माइनस करें तो आपको अभी भी ये कंपनी जो सी है वो ईपीएस की बजाय एलपीएस शो करती हुई नजर आती है अगर इसका क्वार्टर एंड का रिजल्ट देखें। ईयर एंड में जो इसने ईपीएस शो किया था वो 13.88 था, लेकिन अब इसका ये दो लॉस हैं, दो ईपीएस है। अगर इसको 40 और 33 को आप प्लस करें तो 73 में 16 निकालें तो ये तकरीबन 66 के करीब एलपीएस शो कर सकती है। लेकिन जब ये वाली सेल इसमें शामिल होंगी इस क्वार्टर की तो इसके बाद हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी बेहतरी आ जाए। अब उनके लिए ये पोर्शन जो डिविडेंड पे काम करते हैं, तो डिविडेंड वाले हजरात के लिए 2015 में इन्होंने तकरीबन 4% के करीब कैश डिविडेंड दिया था, 2016 में 7% के करीब था, 2017 में तकरीबन 9% के करीब था, 2018 में इनका जो डिविडेंड है तकरीबन 2% के करीब था। अब तक जो शेल है वो 4 फाइनेंशियल ईयर्स में आपको डिविडेंड दे चुकी है जो कि 15 रुपीज़ पर शेयर बनता है, यानी कि 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड इस वक्त तक दे चुकी है। अगर हम कैश पे आउट देखें कब कब इसने दिया था, एक दफ़ा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ लेकिन एक दफ़ा रिपीट कर दूँ उनके लिए जो सिर्फ कैश डिविडेंड पे काम करते हैं। तो 2014 में 4 पे दिया था। सबसे ज़्यादा डिविडेंड इसने 10 मार्च 2017 को दिया था जो कि 28 रुपये था और इसके बाद 18 में फिर इसने 17 रुपये जो सा वो कैश डिविडेंड दिया था और 7 रुपये इसने 2018-16 में अगस्त 16 2018 में इसने डिविडेंड दिया था 7 रुपये का। अब उसकी अदर पे आउट्स में देखें कि अदर पे आउट में ये कंपनी क्या क्या कुछ दे रही है, तो अदर पे आउट में इसने दिसंबर 9 2020 को राइट शेयर इशू किए थे, 100% राइट शेयर इशू किए थे 100 रुपये के ऊपर। और अगर इसमें इसकी फेस वैल्यू भी डालें तो तकरीबन ये 110 के करीब चले जाते हैं। तो राइट शेयर जो इसने इशू किए थे 100% किए थे, यानी कि जिसके पास एक शेयर है तो उसको एक शेयर मिलेगा, जिसके पास 10 शेयर है उसको 10 शेयर राइट के तौर पे मिलेंगे और उसको वो सब्सक्राइब कर सकता है 100 रुपये देकर और उसके साथ उसके प्रीमियम को पे करके। तो ये 3 जैन को जब ये एक्स हुआ तो उससे पहले ये ट्रेड कर रहा था इससे ऊपर वाले पोर्शन में और ये इसकी ट्रेडिंग थी 250 से लेकर और 290 के दरमियान में। ये तकरीबन 45 रुपये के अंदर घूम रहा था और वहीं पे ये अप डाउन हो रहा था, अप एंड डाउन होते हुए जब इसकी लास्ट ट्रेड हुई है वो यहाँ पे थी और ये 280 के करीब इसकी ट्रेड थी जिस पे ये क्लोज हुआ है। ये इसकी लास्ट क्लोजिंग है, यहाँ पे 280 के करीब है। यहीं से ये एक्स हुआ और एक्स होने के बाद जो इसकी न्यू प्राइस खुली वो आपकी तकरीबन 207 रुपये के ऊपर या 8 रुपये के ऊपर आ खुली। एक्स होने के बाद ये शेयर तकरीबन 201 रुपये से लेकर 215 रुपये के दरमियान में घूम रहा है और ये 15 रुपये का तकरीबन अप एंड डाउन दे रहा है और ये 3 जैन से लेकर और अभी तक इसी तरह बिहेव कर रहा है, तकरीबन 15 रुपये अप एंड 15 रुपये डाउन जा रहा है। अब इसके अंदर चीज़ें जो सी तकरीबन सेटल होना शुरू हो गई हैं, चीज़ें सेटलमेंट की तरफ आ गई हैं और इस वक्त ये शेयर 201 रुपये की सपोर्ट लेता हुआ महसूस हो रहा है। इसको ट्रेड किया जा सकता है, आप 201 पे लें और 215 तक आप इसमें जा सकते हैं, 190 का इसमें स्टॉप लॉस लगा लें और इसके बाद आप इसमें ट्रेड करें, क्योंकि इसके रिजल्ट आने के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा मजीद नीचे आए क्योंकि इसका रिजल्ट जो सा है वो ईपीएस के बजाय एलपीएस में शो होगा। तो अगर आप में से कोई वो लोग हैं जिन्होंने इसको 280 में लिया हुआ है, एक्स होने से पहले नहीं बेच सके, एक्स होने से पहले शेयर को नहीं निकाल सके, तो उनको वेट करना होगा तब तक जब तक ये इस प्राइस रेंज में दोबारा दाखिल नहीं हो सकता, उसमें भी टाइम लगेगा।
लेकिन ये जो 80 रुपए से लेकर 280 रुपए से लेकर 201 रुपए का 80 रुपए का चेंज है, अप एंड डाउन करके इसको यहाँ पे क्लियर कर किया जा सकता है इसी पॉइंट के अंदर, जिस पॉइंट के अंदर ये घूम रहा है काफी अर्से से। तो इस पॉइंट के अंदर अप एंड डाउन करके आप 15 रुपए का 3 या 4 ट्रेड लेकर अपने पैसे पूरे कर सकते हैं, या फिर आप वेट कर सकते हैं जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता। तो उनके लिए तो फायदेमंद था, जिन लोगों ने इसके शेयर्स ले लिए उनको 100% शेयर्स भी इसके मिल गए। 100% शेयर के साथ वो थोड़ी सी पैसे पे करके दोबारा 201 पे आ सकते हैं। इजाज़त दें अपने होस्ट मोहम्मद अब्बास जट को इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। अगली वीडियो तक वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।